So today we'll revise refraction in half hour. Refraction. So revision of refraction class 10. So refraction. When light changes its medium, when light changes its medium, it deviated from its path. When light changes its medium, it deviates from its path, and this phenomena is called reflection. So if this is medium 1 and this is medium 2, here if this is medium 1 and this is medium 2, and this is called the interface, this surface is called the interface, and interface, it is a surface, it is a surface which divides the medium. So interface is a surface which divides the medium, यानी इंटरफेस के ऊपर क्या होगा, मीडियम अलग है और इंटरफेस के नीचे क्या मीडियम बाबू अलग है. So interface is a medium which divides the interface is a surface which divides the medium, यानी इंटरफेस के ऊपर मीडियम फर्स्ट है और इंटरफेस के नीचे मीडियम सेकंड है. जैसे कि मान लो कि मीडियम ऊपर क्या है, वाटर है और नीचे क्या है, एयर है. तो यहाँ इसके ऊपर वाटर होगा, इसके नीचे जस्ट इसके ऊपर वाटर और जस्ट इसके नीचे एयर, जस्ट इस सरफेस के ऊपर वाटर और जस्ट इस सरफेस के नीचे एयर. सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. So interface divides the medium into two parts. So if there is a light and this light is coming in medium first, clear? So at interface लाइट विल बेंड, यानी कि यहाँ पे इंटरफेस पे क्या होगा, लाइट बेंड करेगा. यानी लाइट को ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाएगा, लाइट या तो ऐसे जा सकता है, लाइट या तो ऐसे जा सकता है. इसका मतलब at interface the light deviates from its path. Means your deviation will only occur at interface, not in the medium. Your deviation will only occur at interface, not in the medium. In the medium, path of the light will be straight. In a given medium, path of light will be straight. Clear, and deviation will only occur at interface. Clear. So why there is a deviation in path at interface? Why there is a deviation of path at interface? Why at interface your light is getting deviation? इधर भी चला जा रहा है, इधर चल रहा है. What is the reason behind this? So reason is what? At interface your velocity of light is changing. At interface, the reason is what? At interface velocity of light will change. Means your light is getting deviated, or your light deviates only at interface, and change in velocity will only occur at interface. Means deviation of light is due to change in velocity. Clear? Also velocity will only change at interface, so deviation will take place
take place only at interface. So you can tell that, so your refraction will only occur at interface. occur at इंटरफेस, यानी जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है बाबू इंटरफेस को हो रहा है, इंटरफेस पे ही लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा और इंटरफेस पे लाइट डेविएट करेगा, यानी इस मीडियम में कुछ और वेलोसिटी होगा, इस मीडियम में कुछ और वेलोसिटी होगा। क्लियर? जैसे ही यहां तक आएगा, जहां तक मान लो यहां वेलोसिटी है v1, तो यहां भी वेलोसिटी v1 होगा, यहां भी वेलोसिटी v1 होगा, यहां भी v1, यहां भी v1, यहां भी v1। जैसे ही यहां पर आएगा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। मान लो यहाँ वेलोसिटी v2 हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी v2, यहाँ पर वेलोसिटी v2, यहाँ पर, यानी कि इंटरफेस पे चेंज होने के बाद पूरे मीडियम में वही वेलोसिटी होगा, यानी कि इंटरफेस के जस्ट ऊपर v1 और इंटरफेस के जस्ट नीचे v2। इसके ऊपर पाथ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, इसके नीचे भी क्या होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इधर से लाइट आ रहा है और यहाँ पर या तो इधर जाएगा या तो इधर, इधर कभी नहीं जाएगा, मतलब इधर गया तभी बेंड किया ना, इतना बेंड किया, इधर आया तभी क्या हुआ, बेंड किया। So deviation will only occur at interface because there is a change in velocity of light at the interface, and if there is a change in velocity of light, light will get deviated from its original path. इधर ओके, तो ये हो गया, करो इधर देखना। हाँ थोड़ा सा वही occur at interface वाला नहीं आ रहा है, चलिए हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। Speed of light depends upon medium. Clear? Speed of light depends upon medium. Speed of light is highest in vacuum, and which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्लियर? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? यानी कि अगर वैक्यूम में लाइट चल रहा है बाबू, तो उसका वेलोसिटी इसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा, उसको बोलते हैं 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is a constant, or 3 into 10 to the power 8 meter per second is taken as a constant, and the notation of this constant is c, यानी c जब भी कहीं दिखे उसका मतलब है 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is the speed of light in vacuum. किसी और मीडियम में चलता है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, मींस व्हेन लाइट चेंजिंग इट्स मीडियम, when light changes its medium, its velocity changes. क्लियर? तो बाबू वैक्यूम में है तो हाईएस्ट स्पीड है, और बाकी किसी मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा और इससे हमेशा कम होगा। इसका मतलब है कि if v is the speed of light, speed of light in vacuum, सॉरी मीडियम, मीडियम का मतलब तुम्हारा एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। क्लियर? v is the speed of light in medium, and c is the speed of light in vacuum, then your c will be always greater than v। ये आइंस्टाइन ने बोला। इसका मतलब क्या है कि स्पीड का लाइट जो बाबू है इससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम स्पीड है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। लाइट कैन ट्रैवल विथ a speed larger than this. This is the maximum speed of light, and this is the speed of light in vacuum. In other medium, the velocity of light will be always less than this figure. Clear? So this is the, again, inequality condition. Your c will be always greater than v, where v is the speed of light in medium and c the speed of light in vacuum. Clear? So when light is changing its medium, its velocity will change, and due to change in velocity, your light will deviate from its path, and change in velocity and deviation will only occur at the interface. So we will now study the relation between the deviation of light and speed of light. Clear? Speed of light. So, but consider this is the interface.
clear, and this is medium first, this is medium second, and there is a quantity which is called the refractive index. Refractive index, this is a physical quantity, this is a physical quantity which decides which medium is rarer, which medium is rarer और denser. रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेंगे कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है. रेयर एंड डेंसर मतलब देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा बाबू वो क्या होगा, डेंसर होगा. जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा वो रेयर होगा. ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा का मतलब डेंसर, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा का मतलब डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी कम का मतलब रेयर. और ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम. क्लियर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज a physical quantity which decides the given medium is rarer or denser. क्लियर. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा. क्लियर. एंड इट इज डिनोटेड बाय n. इट इज डिनोटेड बाय n. किसी बुक में म्यू से डिनोट किया है, म्यू और n. क्लियर. एंड इट इज ए डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी. इट इज ए यूनिटलेस quantity. Clear. It is a unitless quantity and different medium have different value of n. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वाटर का n अलग होगा, ऑयल का n अलग होगा, क्लियर. एयर का n अलग होगा, वैक्यूम का n 1 होता है. हमेशा याद रखना वैक्यूम का क्या होता है, 1 होता है. मींस 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. यानी किसी भी मीडियम का n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ज्यादा होता है. यानी कि मीडियम n will be always greater than वैक्यूम n. या यही हो सकता है किसी भी मीडियम का n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यानी 1.1 1.2 1.3 होगा. क्लियर. 1 किसका होता है, वैक्यूम में होता है. क्लियर. अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन 1 या n इज लेस देन 1 या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कौन सा सही है, तो ये भी सही हो सकता है. n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा या n 1 के इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा. इक्वल किसके केस में होगा, वैक्यूम के केस में होगा. अगर वैक्यूम है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा और कोई और मीडियम है तो n ग्रेटर देन 1 होगा. तो ये भी सही है. ये क्या हमेशा गलत है क्योंकि n कभी 0.9 या 0.8 कभी नहीं सकता. n जो है 1.1 या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है. क्लियर. ये सब सही है लेकिन ये गलत है. क्लियर. आगे बात समझ पाओ. सो ये हो गया. करो. Clear. So Babu, so if there is a interface and this is first medium 1, this is medium 2. क्लियर. अब क्या ये मीडियम 1 है तो इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका अलग होगा. इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है. मींस n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ first medium and n2 is the refractive index of second medium. Refractive index of second medium. So when if your n1 is greater than n2, अगर इसका refractive index ज्यादा है इसका कम है, इसका मतलब क्या है कि बोल सकते हो कि first medium is denser and second is rare.
अगर ये वैल्यू रहेगी n2 इज ग्रेटर देन n1, तब क्या बोलेंगे सेकेंड इज डेंसर एंड फर्स्ट इज रेयर। कौन मीडियम डेंसर है कौन रेयर है ये डिपेंड करता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि n1 इज ग्रेटर देन n2, हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि अपना ये वाला डेंसर है ये रेयर है, इसका मतलब ये डेंसर है बाबू और ये रेयर है। सो देयर इज अ लाइट रेज, क्लियर, लाइट रे है ये। अब ये इंटरफेस है तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लो इसमें वेलोसिटी v1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर वेलोसिटी का v2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा, क्योंकि मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। सो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम denser to rare. So when light goes from denser to rare, so that the interface denser से rare में जाने के पहले उसको इंटरफेस से गुजरना होगा, and when light pass through interface it will deviate from its path and also velocity will change. तो जैसे इंटरफेस पे आ गई पाथ से डेविएट करेगा, तो पाथ से डेविएट का मतलब ये ओरिजिनल पाथ है, तो पाथ से डेविएट करने का मतलब कि या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। सो एक रूल है when light goes from denser to rarer it will bend away from the normal, it will bend away from the normal, यानी कि लाइट जब रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगा नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल ये है बाबू, ये नॉर्मल है, तो ये ओरिजिनल पाथ है, दूर जाने का मतलब कि ऐसा कोई दिक्कत। एंड व्हेन दूसरा ले लो, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये मान लो कि ये कंडीशन कि n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मतलब क्या है लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, अब होगा ये मामू ये लाइट रे है, इसमें वेलोसिटी क्या है v1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसमें v2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, क्लियर, n2 और v2 हो गया। तो क्या होगा कि ये नॉर्मल डाल लो। सो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा बाबू। तो ये नॉर्मल है, ये लाइट रे है, तो ये ओरिजिनल पाथ है, तो टुवर्ड्स का मतलब क्या होगा ये ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत आई बात समझ बाबू, ये हो गया। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम denser rarer to denser it will bend towards normal, and when light goes from rarer to denser to rarer it will bend away from the normal. So you have to keep this in mind, clear। so लिखो इसको, लिखो क्लियर। सो टाइम बताना ना प्लीज, टाइम बताओ ना। 9:57 So there is a relation between, so there is a relation between angle of deviation, angle of incidence, angle of reflection and velocity and रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन होता है सब में। और ये किसने दिया था बाबू, ये दिया था स्नेल्स ने एक रिलेशन दिया, क्लियर। और रिलेशन क्या है देख लो, तो ये दिस इज इंटरफेस, ये इंसिडेंट है बाबू, क्लियर। और ये क्या है नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और ये बाबू मान लो कि रिफ्लेक्टेड रे। This is angle I, angle of incidence, this is angle R, angle of reflection, कोई दिक्कत। So I is the angle of incidence, R is the angle of reflection। इसका वेलोसिटी v1 इसमें v2 है, इसका n1 है और इसका n2 है, यानी कि v1 is the velocity of light in first medium and v2 is the velocity of light in second medium, clear। and also n1 is the
refractive index of first medium and n2 is the refractive index of second medium. So according to Snell's sin of I upon sin of R is equal to n2 upon n1 is equal to v1 upon v2 is equal to constant. This is the Snell's law. Sin of I upon sin of R is equal to n2 upon n1 is equal to v1 upon v2 is equal to constant. You can write also sin of I upon sin of R is equal to v1 upon v2. This is first equation. You can also write v1 upon v2 is equal to n2 upon n1. This is the second equation. You can also write sin of I upon sin of R is equal to n2 upon n1. This is third equation. And clear? And this crystal quantity n2 upon n1 is can be written as n21. Clear? n21. So your n2 upon n1 is equal to n21. इसको पढ़ेगा refractive index of second medium with respect to first. WRT को पढ़ते हैं with respect to first medium. Is that okay? Clear? So this is the Snell's law. This is the Snell's law. And also clear, sin of I upon sin of R is equal to n2 upon n1 is equal to v1 upon v2 is equal to constant. So यहाँ लिख ले पढ़े sin of I upon sin of R is equal to n2 upon n1 is equal to v1 upon v2 is equal to constant. तो यहाँ सीधी ले सकते हो n2 upon n1 is equal to v1 upon v2. यहाँ भी लिख सकते हो n21 is equal to v1 upon v2. ये भी लिख सकते हैं क्योंकि n21 का मतलब होता है refractive index of second with respect to first. क्लियर? इसको पढ़ेंगे तो ऐसे refractive index of second with respect to first. अगर ऐसा हो 1 2 इसको पढ़ेंगे refractive index of first with respect to second. Is that okay? So this is a constant. So sin of I upon sin of R is equal to constant. Sin of I upon sin of R is equal to constant. So this is a constant for given pair of medium. Constant for given pair of medium. Means if medium is changing, your value of constant will change. मतलब ये बाबू का अगर ये मान ये वाटर है और ये एयर है तो इन दोनों वाटर और एयर के लिए क्या होगा? इस कांस्टेंट का अलग वैल्यू होगा. इनमें से कोई सा एक मीडियम चेंज कर दिया है. वाटर के जगह तुम ऑयल ले लो तभी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, या वाटर को फिक्स रख के तुम एयर को चेंज करके कुछ और ले लो, ऑयल ले लो या मिल्क ले लो, तभी क्या होगा? चेंज हो जाएगा. मींस दिस इज ए कांस्टेंट but not constant. It is not universal constant. This is a constant and this constant depends upon medium. This is a constant for given pair of medium. यानी कि इंटरफेस के ऊपर और इंटरफेस के नीचे इन दोनों मीडियम को अगर फिक्स कर दोगे तभी कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होगा. If you are changing either of the medium, your value of constant will change. Clear? So this is the refraction. In the next class, we will revise lens formula and image formation by lens. Bye.